سے لوکا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب 46ویں آیت سے میں آپ کے سامنے 56 آیت تک تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر گھر کو لوٹ آئی۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ یہ لوکا رسول کی انجیل کے اندر در حقیقت مقدسہ مریم کا گیت ہے۔ کئی مرتبہ مسیحی عقیدے کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبور اور گیت صرف اور صرف بزرگ داؤد کے ہیں، لیکن نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے ان دونوں عہد کے اندر بہت سے انبیاء نے گیت بھی گائے، گیت لکھے، زبور لکھے۔ در حقیقت پرستش جو ہے، جو گایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کس ردم سے گایا جا رہا ہے، کس انداز سے گایا جا رہا ہے۔ اندر سے شاعرانہ انداز اٹھتا ہے اور یہ بھی خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اور مقدسہ مریم کو جب یہ خبر ملی کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، جبرائیل فرشتہ آ کے کہتا ہے، خدا نے اس پر رحم کیا اور اس نے فرمایا، دیکھ میں تیری بندی ہوں، تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو، میں خداوند کی بندی ہوں، میں اسے ریسیو کرتی ہوں، میں اسے قبول کرتی ہوں۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ گفٹ ہے، یہ ایسا تحفہ ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عقل سلیم اس کو لینے کے لیے قاصر ہے۔ سوچ یہاں ختم ہو جاتی ہے، عقل یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ کسی جوان کنواری لڑکی سے کہا جائے کہ تو ماں بننے والی ہے، تو اس کا رویہ، اس کا انداز بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب مقدسہ مریم کو جبرائیل فرشتہ آ کے پیغام دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، وہ بیٹا اس لیے پیدا ہوگا کہ قدیم صحیفوں کے اندر لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ کنواری تو ہے، تجھے خداوند نے چنا ہے، تجھے مقدس ٹھہرایا ہے، تجھے الگ کیا ہے، وہ کنواری تو ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے فرشتہ نے اس سے یہ جواب دیا اور کہا کہ وہ تو ہے، تیرے اندر سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ منجی عالمین ہوگی، وہ دونوں جہاں کے لیے نجات کا باعث بنے گی، وہ اس جہاں کے لیے اور آنے والے جہاں کے لیے، وہ تمام جہانوں کے لیے باعث نجات بنے گی، کیونکہ تو اس کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، مریم مقدسہ قبول کر لیتی ہے مشکل امر کو، مشکل بات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قبول کرتی ہے تو پہلی بات معاشرے کے اندر بدنامی اور ذلت کا سبب ہے،
کہ خدا کے کلام کے اندر جو پہلی بات مقدسہ مریم نے اپنی زندگی میں رسیو کر لی تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے کے طور پر جو معاشرہ ہے، معاشرہ اس کی بدنامی کرے گا، معاشرہ اسے ذلیل و خوار کرے گا، معاشرہ اسے لعن طعن کرے گا کہ ایک کنواری اور وہ بھی حاملہ ہو گئی ہے تو کس کس کو جواب دے، کون کون سی ایلیگیشنز دور کی جائیں، جو اعتراضات کیے جائیں کیسے کون دور کرے گا۔ سو پہلی بات تھی مقدسہ مریم کے لیے اس بات کو لینا نہایت مشکل ہے، لیکن مقدسہ مریم کے اندر دلیری ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا پیدا ہو گیا، 9 ماہ تک جب تک خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے کس کس کو وہ بتائے، کون کون سی کہانی بتائے، کیسے وہ بتائے کہ میں کیوں حاملہ ہوئی ہوں۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور آج آپ جانتے ہیں کہ آج پرپٹ کے اوپر سے یا پرپٹ کے نیچے سے لوگ کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبوتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کلام کے حقائق اور کلام کی تحقیق و تفتیش کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک خاتون کماری لڑکی کی بات کون مانے گا؟ لیکن اس نے نہایت دلیری کی، اور اس دلیری کے عوض اس نے کہا تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو، میں اسے ریسیو کرتی ہوں، میں اسے لے لیتی ہوں، میں اس بلیسنگ کو اپنے اوپر لیتی ہوں، جو تو کہتا ہے ویسا ہی میرے لیے ہو۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر نہایت خوبصورت بات، نہایت خوبصورت بات، جب اس نے لے لیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا 38ویں آیت کے اندر لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، فرشتہ تو بس میسج دے کے چلا گیا، اگلے 9 ماہ جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے معاشرے کے ساتھ۔ مقدسہ مریم نے اگلے 9 ماہ جو ہے فیملی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، فیملی کو کنونس کرنا ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر کوئی کنواری حاملہ ہو جائے تو ازرو شریعت یہ ہے اسے پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ تو حاملہ کنواری کی سزا سنگساری ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، لیکن اس حاملہ خاتون کی سزا کیا ہوگی؟ کیا اس کی سزا سنگساری ہے؟ لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے قبول کر لیا ہو، ان تمام باتوں کو اپنے اوپر لے لیا اور کہا تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو، کیونکہ میں خداوند کی بندی ہوں۔ پہلی بات اس نے اپنا پورا بھروسہ، پورا اعتقاد، پورا اعتماد، پورا جامعہ طور پر خدا کے حضور رکھ دیا اور فرمایا کہ میں خدا کے قول کے موافق چلوں گی، معاشرے کے ساتھ خود میں لڑوں گی، معاشرے کے ساتھ خود میں مقابلہ کروں گی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو بائبل میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم اٹھ کے پہاڑی علاقے کو چلی گئی اور الشبا کے پاس جاتی ہے، اور الشبا بھی اس وقت حاملہ تھی، نہ وہ بتا رہی تھی نہ یہ بتا رہی تھی، نہ وہ بتانے کو تیار تھی کہ میں بڑھاپے کے اندر ماں بننے والی ہوں، نہ یہ بتانے کو تیار تھی کہ میں کنواری ماں بننے والی ہوں۔ وہ بڑھاپے کے اندر ماں بننے والی ہے وہ بھی چھپا رہی ہے، یہ کنواری ماں بننے والی ہے یہ بھی چھپا رہی ہے۔ سو دونوں خواتین اپنی اپنی بلیسنگز کو چھپا رہی ہیں، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے مقدسہ مریم وہاں پر پہنچتی ہیں اور جا کر الشبا کو سلام کرتی ہیں تو نبوت پہلے ہو چکی تھی کہ جو بیٹا، زکریا کو کہا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا۔ سو پروفسی ہو چکی ہے، نبوت ہو چکی ہے، زکریا کے ساتھ کلام ہو چکا ہے کہ یوحنا ماں کے پیٹ سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اور جیسے مقدسہ مریم آ کے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے سلام تجھ کو، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے مارے خوشی کے پیٹ میں بچہ اچھل پڑا اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ تب الشبا کہتی ہے، پہلے نہیں، پہلے چھپایا ہے، تب الشبا کہتی ہے کہ چوہی تیری آواز میرے کانوں کے اندر پہنچی تو بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا اور میں روح القدس سے بھر گئی۔ اس نے پھر ظاہر کیا کہ میں حاملہ ہوں، تو اب یہ بھی کہتی ہے میں بھی حاملہ ہوں۔
मुझ पर भी फजल हुआ है। सो पहली बार अगर मुकद्दसा मरियम किसी से जाके शेयरिंग कर रही है तो वो ये खातून है पब्लिकली कि मैं हामिला हूं। अब मेरे साथ रहिए, जब उसने शेयर कर लिया तो 3 महीने वहां रही। तो बाइबल में लिखा है उन महीनों के अंदर करती क्या रही? जो पहला काम उसने किया, मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की, जरा बुलंद आवाज से, मेरी जान खुदावंद की पढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनंजी से खुश हुई। मुनंजी कहते हैं नजात दहिंदा को। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। सो पहली बात मुकद्दसा मरियम ने उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह पेट के अंदर है, आपने इकरार किया कि ये जो पेट के अंदर है ये मेरा बेटा भी है, ये इब्ने अल्लाह या खुदा का बेटा भी है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ ये आलम का दुनिया का नजात दहिंदा और मुनंजी है, और ये मेरा मुनंजी भी है। ये सिर्फ दुनिया का नजात दहिंदा नहीं बल्कि ये मेरा भी नजात दहिंदा है। मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर रहम किया। कब? पस्तहाली। अब पस्तहाली क्या है? मेरे साथ रहिए। पस्तहाली ये है कि औरतों की मुआशरे के अंदर कदर नहीं है। पस्तहाली ये है कि औरत को निगलेक्ट किया गया है। पस्तहाली ये है कि औरत की बाबत कहा यह जाता था कि औरत खिदमत में नहीं आएगी। मर्द मेल बच्चे जो हैं वो खुदा की नजर किए जाएंगे, फीमेल खुदा की नजर नहीं की जा रही। उस मुआशरे के अंदर, शरीयत के अंदर यह लिखा था कि हर पेलोटी का नर बच्चा खुदावंद का है। तो कहानत के लिए, नबूवत के लिए, इल्हाम के लिए, खिदमत के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए जो बच्चे पेश किए जाते थे वो फरजंदे नरीना होते थे, नर मेल बच्चे होते थे, और वो बच्चे खुदा को पेश किए जाते थे। बच्चियां तो पेश नहीं की जाती थी, लड़कियां तो पेश नहीं की जाती थी। उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दरकोर किया जाता था। यहूदियत के अंदर को ऐसा नहीं था, लेकिन मुआशरों के अंदर, बहुत से मुआशरों के अंदर ऐसा था, बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन उस जमाने के अंदर मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को कमिट करके, उसके वालिदैन ने खुदा के हजूर में हैकल की नजर किया, हैकल के अंदर रही, वक्त गुजारा खुदा के साथ, मुआशरे के साथ। कहा मैं मुकाबिला करूंगी इस मुआशरे का। सो पहली बात, जब ब्लेसिंग आती है, बरकत आती है, तो मुआशरा उंगलियां भी उठाता है। हमारी बरकत लोगों के लिए जेलसी का सबब भी बन जाती है। हमारी बरकत लोगों के लिए कीना का सबब बन जाती है। हमारी बरकत लोगों के लिए हसद का सबब बन जाती है। हमारी बरकत लोगों के लिए बुग़्ज़ का सबब बन जाती है। हमारी बरकत लोगों के लिए झगड़ों का सबब बन जाती है। जो खुदा ने आपको ब्लेस किया है, उस ब्लेसिंग के लिए आपको मुआशरे से फाइट करना है, मुआशरे के साथ अपनी बरकत के लिए लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो बरकत निखर के सामने आएगी। अगर आप उस बरकत को लेके छुपाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, बस हिम्मत हो जाएंगे, वो बरकत नहीं रहेगी और आगे नहीं बढ़ सकेगी। सो मुकद्दसा मरियम ने कहा कि मैं पस्तहाल हूं, मुझे को पूछने वाला नहीं, मुआशरे के अंदर मेरी कदर कोई नहीं, औरत को आगे आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन खुदा ने मेरी पस्तगी और शिकस्तगी पर रहम किया। और ऐसे ही हम हैं, जितने हम यहां पर बैठे हैं, हम भी पस्तहाल हैं, बेवजूद हैं। खुदा ने अगर आपको चुना है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया, दुनिया के नालायकों को चुन लिया, दुनिया के जाहिलों को चुन लिया। सो ऐसे लोग जो दुनिया की नजर में बेवकूफ है, दुनिया की नजर में जाहिल है, दुनिया की नजर में बसे पुश्त फेंके हुए हैं, दुनिया की नजर में रद्द किए हुए हैं, खुदा ऐसे लोगों को उठा लेता है, चुन लेता है, जो हौसला रखते हैं मुआशरे के सामने खड़ा होने का। खुदा उन्हें चुनता है, दूसरे को नहीं। इधरों गल सुनी तो नाल ही लेट के पिया रहना, सौ रहना,
प्रॉब्लम के अंदर फंस जाना। खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, उनको इस्तेमाल करता है जो ढाल बन के सामने खड़े हो जाते हैं खुदा के जलाल के लिए। खुदा ने ब्लेस किया है, सबको ब्लेस किया है, लेकिन हम अपनी ब्लेसिंग से खुद डिस्करेज हो जाते हैं लोगों की बातों से। मुकद्दसा मरियम नहीं हुई, उसने कहा मेरी पस्तगी और शिकस्तगी पर, मेरी पस्तहाली पर खुदा ने रहम किया, और आगे बड़ी स्टेटमेंट दी। ये फरिश्ते ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, उसने कहा कि अब जो मेरी पस्तगी पर रहम किया, मेरी पस्तहाली पर रहम किया, मेरी हकारत पर रहम किया, मुझे जब नेग्लेक्ट किया गया था, रद्द किया गया था, तब खुदा ने मुझे चुना और मुझ पर रहम किया। तो अब मैं अनाउंस करती हूँ, ऐलान करती हूँ, और ये ऐलान नबी ने नहीं किया, ये ऐलान फरिश्ते ने नहीं किया, ये ऐलान खुदा ने नहीं किया, ये ऐलान जो किया, ऐलान ये है, देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको, मेरे साथ रहिए जरा, कहना तो किसी को चाहिए था ना, कहना तो फरिश्ते को चाहिए था, मरियम आज से लेकर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। मरियम, खुदा कह रहा है, एलोहीम खुदा मुकद्दसा मरियम से कह रहा है, मुकद्दसा मरियम आज से लेकर हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट है किसकी? मुकद्दसा मरियम की अपनी है, जाती है, और जाती स्टेटमेंट क्या है? अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे, यह है कॉन्फिडेंस, लड़ने का कॉन्फिडेंस। अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। क्यों भाई तुझे मुबारक कहेंगे? क्या वजह है तुझे मुबारक कहेंगे? पहली वजह, मैं पास हिम्मत नहीं हूं, मैं डिस्करेज खातून नहीं हूं, मैं रद्द की खातून जरूर हूं, मैं साथ रहिए, मैं रद्द की हुई जरूर हूं, पस्तगी और शिकस्तगी के अंदर जरूर हूं, पस्तहाली के अंदर जरूर हूं, निगलेक्टेड जरूर हूं, लेकिन डिस्करेज जरूर नहीं हूं, पास हिम्मत नहीं हूं। मेरे अंदर हिम्मत है लड़ने की, मेरे अंदर हिम्मत है मुआशरे का मुकाबला करने की, मेरे अंदर हिम्मत है सामने खड़ा होने की, मैं डिस्करेज नहीं हूं। इसलिए उसने पहले से कह दिया कि अब से लेकर कितने जमाना के, इस जमाने की गल नहीं कर रही। मुकद्दसा मरियम उस जमाने की जो एलिगेशन लगाने वाले हैं उनके कहता सबर करो, तो अडी की औकात है, जो इल्जाम लगाने वाले हो सुन लो, तुम ही नहीं, तुम कहो या ना कहो, हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। ये मुकद्दसा मरियम ने खुद कहा। मुआशरे वालों तुम क्या कहते हो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, छोड़ो इस बात को, मैं रहूं या ना रहूं जमीन पर, मैं रहूं या ना रहूं यहां पर, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा नाम जब भी लिया जाएगा तो लोग मुझे ही मुबारक कहेंगे। ये है हिम्मत, ये है बरकत। जब आप खुद महसूस कर लेते हैं कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मैं इतने नोबल काम के लिए खड़ा हूं, तो मुझे मुबारक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक दो बंदा अगर आप पर बात कर लेता है तो एवं मुंह वट वुट के बह जाते हो, बना बनू के बह जाते हो। जो काम खुदा ने आपको दिया है उसको छोड़ देते हैं, जो मिशन आपको दिया है वो छोड़ देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा, मुकद्दसा मरियम ने कहा क्या, आगे जरा सुनिए, मेरे साथ रहिए, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते पुष्ट रहता है, उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और अपने ताई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। किनको? जो प्राउड हैं, जो बहुत शही मारते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि तू और मैं, हकीर जानने वालों को, छोटे जानने वालों को, जो उंगलियां उठाते हैं, जो बातें करते हैं, जो ताने देते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा ने उनको परागंदा किया। जो अपने ताई बड़ा समझते हैं, जो अपने ताई बड़ा समझते हैं, उन्हें खुदावंद ने क्या किया? जरा बुलंद आवाज से बोले, उन्हें खुदावंद ने क्या किया? मेरे आयत एक खुदा ने अब भी डाली को, ये प्लान में नहीं थी। इस्तिस्ना की किताब के अंदर लिखा है, अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो तू मुबारक होगा। तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और कितने रास्तों से भागेंगे? जरा बुलंद आवाज से, कितने रास्तों से भागेंगे? तेरे दुश्मन फ्रंट से आएंगे और इतने
जितने रास्ते उनके लिए खुले होंगे तेरे तक नहीं पहुंचेगा, कोई इधरों निकलेगा, कोई इधरों निकलेगा, कोई इधरों निकलेगा। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, ऐ खातून तुम पर इल्जाम लगाने वाले कहां गए? कहा किसी ने कोई इल्जाम लगाया? फरमाया किसी ने नहीं। बैठा मेरा यीशु हो सामने तो किसी की जुर्रत है इल्जाम लगा जाए। आप अगर यीशु मसीह, मेरे साथ रहिए, अगर आप यीशु मसीह को कबूल करके उसके अहकाम को ले लेते हैं तो आपके सामने अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद मौजूद होता है तो किसी की जुर्रत है कि आप पर इल्जाम लगाए? इल्जाम लगाने वाले साइड्स पे हो जाएंगे, एक रास्ते से आएंगे, कितनों से भाग के जाएंगे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने नजर उठाई, कितने लोग थे वहां पर? कोई एक, कितने रास्तों से भागे होंगे? आए मोब बन के, आए एक इज्तिमा हजूम के साथ, कल्ला कल्ला होके तितर बितर हो गए। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, खुदा उन्हें क्या कर देता है? खुदा उन्हें आपके सामने बड़ा गंदा करेगा, आपकी आंखों के सामने उन्हें तितर बितर कर देगा, उन्हें बखेर के रख देगा। जितने मर्जी बड़े मोब आपके खिलाफ हो जाए, जितने मर्जी बड़े ग्रुप्स आपके खिलाफ हो जाए, जितने मर्जी बड़ी कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप खुदा की बरकत को रिसीव कर चुके हैं, बरकत आपके अंदर आ चुकी है, उस बरकत के सबब से सारे तितर बितर हो जाएंगे, भाग जाएंगे और आप और आपका यहोवा खुदा दोनों खड़े होंगे। कोई आपके सामने ठहर नहीं सकेगा, तेरे दुश्मन तेरे सामने ठहर नहीं सकेंगे, यहोवा खुदा फरमाता है। और उसने इख्तियार वालों को गिरा दिया। सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं, बल्कि किसको? अथॉरिटी वाले, जो ये कहते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पॉलिटिकल पावर है, मेरे पास समाजी कुव्वत है, मेरे पास फाइनेंशियल पावर है, मेरे पास फलां पावर है, मेरे पास फलां पावर है। खुदा फरमाता है जब मैं तुझे ब्लेस करता हूं तो मैं उन इख्तियार वालों को तेरे सामने क्या करूंगा? बाइबल मुकद्दस, इख्तियार वालों को मैं तख्त के ऊपर से नीचे गिराऊंगा। जो बड़े अथॉरिटी वाले हैं ना, जो तेरी ब्लेसिंग्स को देख के प्रॉब्लम के अंदर आके तेरी ब्लेसिंग के खिलाफ होंगे, मैं उन्हें तख्त से उठा के नीचे फेंक दूंगा, तेरे दुश्मनों को भगा दूंगा, खुदा फरमाता है। और करूंगा मैं क्या? मैं वो खुदा हूं, उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। कैसे लुटा दिया? खाली हाथ। इख्तियार वाले, फाइनेंशियल, जो कहते हैं मेरे पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, रिलीजियस पावर है, सोशल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मेरे पास बड़ी कुव्वत है, मैं विराजमान हूं इस जगह पर, मुझे कोई हिला नहीं सकता। खुदा फरमाता है मैं नीचे गिराऊंगा और गरीबों, मुफलिसों को, पस्त हालों को, जैसे तूने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा तेरे कॉल के मुआफिक मेरे लिए हो, मैं तुझे सरफराजी सबके सामने दूंगा। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने खादिम इस्राइल को संभाला ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहे, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा। खुदा अपने वादों से मुकरता नहीं है, खुदा अपने वादों से इनहराफ नहीं करता, मुकरता नहीं है, इसलिए वो सादकुल कौल है, वो मुकरता नहीं है। मुकद्दसा मरियम को जब ये ब्लेसिंग मिल गई, उसके सामने इख्तियार वाले भी हैं, मेरे सामने साथ रखिएगा, उसके सामने इख्तियार वाले भी हैं, उसके सामने मुआशरे के अंदर इल्जाम लगाने वाले भी हैं, उसके सामने अमीर लोग भी हैं, उसके सामने तरह तरह के लोग हैं, और तन्हा मुकद्दसा मरियम कंवारी खड़ी है। फतुआ देने वाले भी हैं और फतुए भी मौजूद हैं, इसे संसार करो, लेकिन वो खड़ी है। कभी हमने इस पहलू पे सोचा ही नहीं है, 9 महीने गुजारे कैसे है मुकद्दसा मरियम ने, क्या मुआमिलात है। ऐसी लड़की जिसके पास शोहर नहीं है और वो गुजारा कर रही है, किन मराहिल से गुजर रही है, किन प्रॉब्लम्स के अंदर से गुजर रही है, शायद हमने ऐसा सोचा नहीं है। लेकिन खुदावंद फरमाता है जब मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, मैंने तुझे ब्लेसिंग दे दी, सिर्फ तुझसे एक बात मैं चाहता हूं, कुछ नहीं खुदा हमसे चाहता, नथिंग, कुछ नहीं। मुकद्दसा मरियम ने आर्ग्यूमेंट किया फरिश्ते के साथ, बहस की फरिश्ते के साथ, लेकिन एंड में जो उसकी जुबान मुबारका से लफ्ज निकले हैं वो ही मेरे लिए और आपके लिए है, और वो ये हैं, मैं खुदावंद की
बंदी हूँ, तेरे कॉल के मुवाफिक मेरे लिए हो। चाहते हैं कि ब्लेसिंग आपके लिए बढ़ जाए, आपकी ब्लेसिंग और बढ़ जाए जो आपको रिसीव हो चुकी है। कभी आपने कहा है ऐ खुदावन तेरे कॉल के मुवाफिक हो, या ये सिर्फ ठेका मुकद्दसा मरियम ने लिया है? अब जरा सुनिए, आखिरी चंद मिनट सुनिए। खुदा ने हमें बहुत चीजें दी हैं, बहुत चीजें दी हैं। मुकद्दसा मरियम को जो सबसे प्रेशियस थी, जो सबसे कीमती, अनमोल, जिसकी कोई प्राइस ही नहीं है, वो था खुदा का बेटा यीशु मसीह। वो दे दिया। दुनियावी तौर पर संभालना किसने था उसे? मैं साथ रही है। और यीशु मसीह कदोकामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया, एकदम नहीं बड़ा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह कदोकामत में, हिकमत में, खुदा की पहचान और इंसान की पहचान में तरक्की करता गया। तो पाला किसने? उस ब्लेसिंग को चमकाया किसने? उस ब्लेसिंग की देखभाल किसने की? हमारे पास क्या है? कौन सी ब्लेसिंग्स है, कौन सी बरकतें हैं? मैंने लास्ट संडे अनाउंस किया था कि ये इतवार हमारी ब्लेसिंग्स का इतवार है। हमने थैंक्स गिविंग खुदावंद को देनी है। मुकद्दसा मरियम ने थैंक्स गिविंग देने के बाद बड़ी बात कही है, अब से लेकर, आज मैं इसको अपोलोजेटिकली नहीं बयान कर रहा और ना इसकी कुछ थियोलॉजी गहरी में लेकर जा रहा हूं। मैं आज सादगी से आपसे कह रहा हूं कि आपके पास क्या है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं अब से लेके हर जमाना के लोग मुझे ही मुबारक कहेंगे। क्या है आपके पास? दो चीजें। पहली चीज, जब आपको बरकत मिली है तो क्या आप कह रहे हैं तेरे कॉल के मुवाफिक मेरे लिए हो? और फिर क्या आप कह रहे हैं कि मैं अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे? इस सेंटर में क्या है? ये आपकी स्ट्रगल है। इस सेंटर में क्या है? इस स्टेटमेंट से शुरू करना और यहां तक आकर इसका इख्तिताम होना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पीरियड है और वो आपकी लाइफ का है। वो स्ट्रगलिंग पीरियड है आपका, वो मुश्किलात का पीरियड है आपका, जब आपको ब्लेसिंग खुदा दे देता है। कई लोगों को खुदा ने ब्लेसिंग दी है। मुझे एक बात बताएं, जी आपकी जो ब्लेसिंग्स है कहां जाएंगी? जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं कहां जाएंगी? लास्ट संडे एक मैसेज था कि आपकी नस्ल में चीजें मुंतकिल हो जाती हैं, स्पिरिचुअली मुंतकिल होती हैं, फिजिकली मुंतकिल हो जाती हैं। हमने बड़ी डिटेल से सीखा था। आपका करैक्टर मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है आपकी जनरेशन के अंदर। तो आपकी जो फिजिकल ब्लेसिंग्स हैं ये भी ट्रांसफर हो जाती हैं कि कोल रख के ले जाते हो। रास्तबाज, बाइबल में लिखा है, रास्तबाज सादक अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ के जाता है आपके पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के साथ साथ फिजिकल ब्लेसिंग है आपके पास? क्या आप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ के जाएं? अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, या कहेंगे आप दी मर गया ते आ की छड़ गया। और ये होता है, ये होता है। आप दी मर गया है, ऐ की कर गया। आप दी टुर गया है, ऐ की कर गया। ब्लेसिंग खुदा ने सबको दी है। आप में से कोई ऐसा है जो कहता है मैं ब्लेस्ड नहीं हूं? एक हाथ दिखा दे मुझे, है जी या नहीं? आप में से कितने हैं जो ब्लेस्ड है? तो दोनों हाथ ऊपर आज करेंगे। जो ब्लेस्ड है कह सकते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं भाई से बरकत हूं, खुदावंद ने मुझे बरकतें दी हैं। दी हैं या नहीं? खुदावंद ने आपको बरकतें दी हैं। तो क्या वो बरकतें जो दी हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे इस बरकत के सबब से मुबारक कहेंगे? मुकद्दसा मरियम को यीशु के सबब से मुबारक कह रहे हैं। आप कितने खूबसूरत हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लेटते हैं, किसी को सरोकार नहीं है। सारी दुनिया ही करती है, खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है, सोती है, ट्रैवल करती है, सब कुछ सारी दुनिया करती है।
लेकिन नाम चंद लोगों के रह जाता है। क्यों? वो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि नाम रह जाता है। अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। क्या आपके अंदर ऐसा कर्ज है? आपने किया क्या है वैसे आज तक खुदा के लिए? ब्लेसिंग्स ये नहीं है कि आपको कितना मिला है, मेरे साथ रहिए आप, आखिरी चंद मिनट है। ब्लेसिंग्स ये नहीं है कि आपको कितना मिला है, ब्लेसिंग्स ये है आपने दिया कितना है, आपने इन्वेस्ट कितना किया है, आपने अपनी ब्लेसिंग को लोगों के अंदर ट्रांसफर कितना किया है। आप जानते हैं कि ये गीत है, ये प्रस्तुष है, और आप जानते हैं कि प्रस्तुष हकीकत के अंदर बाजा तबला बजा के नहीं है। वर्शिप मुकद्दसा मरियम कर रही है ब्लेसिंग के बाद, और वर्शिप जो है वो वर्शिप से है। इंग्लिश, कदीम इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं वर्शिप को, हकीकत में जो वहां से माखज है, वहां से निकली है, सोर्सेस का वो लफ्ज है। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को कुलियतन, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट सरेंडर कर देना। न सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना, बल्कि जो आपकी अशिया है उसको भी सरेंडर करने का नाम वर्शिप है, इबादत है, बंदगी है, जो ब्लेसिंग्स के बाद मिलती है। आप जानते हैं काइन और हाबल को जब खुदा ने ब्लेस किया, बरकत दी, तो वो खुदा की प्रस्तुति कैसे करते थे? गीत गा के नहीं कर रहे हैं, वो हदिये ला रहे हैं, नजराने ला रहे हैं, और हदिये नजरानों से खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, और वहां ही मकबूल और ना मकबूल भी ठहरा है। ऐसा ही है जी। किसका हदिया कबूल हुआ था? याद हो? हाबिल का क्यों हदिया कबूल हुआ था? जरा आप बताएंगे, आखिरी चंद मिनट है, बताएं क्यों कबूल हुआ था? इसलिए कि उसने अच्छा हिस्सा खुदा को दिया था और वो मकबूल हुआ। और आज नाम किसका चल रहा है? काइन का नाम कौन क्यों नहीं लोग लेते? काइन इबरत का सबब बन गया। जैसे तूफान नूह खत्म हुआ, तो नूह के तूफान के खात्मे के बाद सबसे पहले नूह ने खुदावंद की इबादत गुजारनी, और इबादत के अंदर खुदावंद के हुजूर उसने क्या किया? जानवरों को लिया, अच्छे अच्छे, हालांकि नस्ल थोड़ी थी, जमीन पर जानवर नहीं थे, फिर जो उसके पास था उसने उन जानवरों को लिया और खुदा के हुजूर उसकी सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, खुदा के राहत अंगेज खुशबू ली। इब्राहिम ने जो उसका सबसे खूबसूरत ठीक बीज था, जो सबसे प्रेशियस था, खुदा के हुजूर उसने दिया, और वो क्या था? याद करें, वो है इबादत, वो है वर्शिप। और यहाँ मुकद्दसा मरियम जो गीत गा रही है, जो कह रही है मेरी जान खुदावंद की भलाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनंजी से खुश है, ये हकीकतन अपने पूरे जिस्म को खुदा के हुजूर में रख के कह रही है, ये नजराने के तौर पर तुझे दिया, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जो है तेरे बेटे की हिफाजत करूंगी, पालूंगी, परवरिश करूंगी, ताने बर्दाश्त करूंगी, लोगों की चीजें बर्दाश्त करके मैं इसे इस जगह पर ले जाऊंगी जब ये कदो कामत और हिकमत और खुदा और इंसान की पहचान में मकबूलियत पाके तरक्की पा जाएगा। तो पीछे मुकद्दसा मरियम का हाथ है उस ब्लेसिंग्स के अंदर। खुदा ने आपको कितनी बरकतें दी हैं, आपको कितनी बख्शिशें दी हैं, ये आपको पता है। ब्लेसिंग ये नहीं है कि आप लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं और कहें जी बस मिलता जाए मिलता जाए मिलता है, थैंक यू खुदावंद ये भी दे दिया, थैंक यू खुदावंद ये भी दे दिया, थैंक यू खुदावंद ये भी दे दिया। आपके पास से कितनी बरकत निकल रही है, इसको ब्लेसिंग्स कहते हैं। तो यही तो ब्लेसिंग है जिस ब्लेसिंग से लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे अंदर ब्लेसिंग्स हैं, इनसे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप उनकी परवाह ना करें, बल्कि उसे इतना को आगे तकसीम करें, आगे बांटे कि आप मुकद्दसा मरियम की तरह कह दें, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लोग मुझे मुबारक जरूर कहेंगे, लोग मुझे मुबारक जरूर कहेंगे, क्योंकि मैंने काम ऐसा किया है, मैंने काम ऐसा किया है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आप में से कितने हैं जो ब्लेसिंग लेकर देने वाले हैं? हाथ नहीं मैं देखूंगा, क्वेश्चन करूंगा आपसे, कितने हैं जो ये अपने अंदर सोचते हैं खुदावंद तूने जो मुझे ब्लेसिंग दी है इसको मैं आगे भी ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं आगे भी दे रहा हूं। जब आप आगे ब्लेसिंग्स देते हैं तब आप बाइश बरकत बन जाते हैं। दुआ करेंगे, सरों को झुकाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।